everyone, I am from M.Sc course on physics. The topic I am going to present here is Micro-electro-mechanical-system MEMS and Nano-electro-mechanical-system NEMS. So these are the contents: introduction to MEMS or NEMS, dimensions of MEMS and NEMS, components of MEMS, fabrication techniques, MEMS devices, optical MEMS and RF MEMS, application of MEMS, current challenges and future trends, and the references. Now the introduction to MEMS. MEMS is an acronym for Micro-electro-mechanical systems. MEMS माइक्रोस्कोपिक डिवाइसेस होते हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होती है वो 1 मिलीमीटर से छोटी होती है और 1 माइक्रोमीटर से बड़ी होती है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स दोनों उसमें कंबाइन होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स माइक्रो रेंज के होते हैं, इसीलिए इसे MEMS कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन विल सी Micro-electro-mechanical-system MEMS refer to microscopic devices that have a characteristic length of less than 1 mm but more than 1 micrometer and combine electrical and mechanical components both. तो इसमें हम एक चिप में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स दोनों को टुगेदर कंबाइन करते हैं और एक मिनिएचराइज्ड डायमेंशन का एक सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। MEMS or Micro-electro-mechanical system is a technique of combining electrical and mechanical components together on a chip to produce a system of miniature dimension. Similarly, NEMS is an acronym for Nano-electro-mechanical-system NEMS, and it refers to nanoscopic devices that have a character and combine electrical and mechanical components both. Now we'll see the dimensions of MEMS and NEMS in perspective. So in the given figure, you can see the scaling of different systems, atom, DNA, virus. This all comes in nano range. This hemoglobin, this all comes in nano range. And you can see bacteria, dust, human hair, red blood cell. This all comes in micro range. And the things which have length between 1 mm to 10 centimeter comes in mesoscale range. And after that, macro system comes. And so we can easily see that MEMS devices or components have size less than that of a human. मतलब जो MEMS devices होते हैं उनका जो साइज होता है वो ह्यूमन हेयर से भी छोटा होता है। और ऐसे डिवाइसेस जो मेसो स्केल रेंज में आते हैं पर उनके जो फंक्शनल कंपोनेंट्स यदि माइक्रो रेंज के हो या नैनो रेंज के हो तो उन्हें भी MEMS में कंसिडर किया जाता है। Now the scale of things. So you can see in the left of the figure that there exist natural things ranging from micro and nano scale. So you can see in the figure that DNA and magnetic domains, human hair, these all comes in micro world. And on the right of the figure you can see things man-made. So we are progressing in miniaturization of things. Now the components of MEMS. There are 4 basic components of MEMS. The first is sensor, actuator, third is microstructures and electronics. Now we will see one by one each of the components. So the first component is sensor. A sensor is a device that receives and responds to a signal. The signal must be produced by some type of energy such as heat, light, motion or chemical reaction. Once a sensor detects one or more of these signals and input, it converts it into an analog or digital representation of the input signal that can easily be read and understood. Sensor एक डिवाइस है जो एक सिग्नल को रिसीव करता है और उसको रेस्पॉन्ड करता है और ये सिग्नल ये कौन प्रोड्यूस करता है? हीट, लाइट, मोशन, केमिकल रिएक्शन ऐसे एनर्जी से ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं और इन सिग्नल्स को सेंसर डिटेक्ट करता है और हमें रीडेबल, इजीली रीडेबल और अंडरस्टूड फॉर्मेट में आउटपुट देता है। और हम ह्यूमन बींग्स के पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स होते हैं जैसे आई, ईयर, माउथ एंड नोज, हैंड्स, स्किन, these all are 5 types of sensors. तो जो डिवाइस होता है वो भी इसी से ही इंस्पायर होकर बनाए जाते हैं कि सिग्नल्स को सेंस करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल थर्मामीटर भी एक इन्वायरमेंटल कंडीशन को सेंस करके हमें एक रीडेबल आउटपुट देता है।
इसको हम इजिली रीड कर सकते हैं और अंडरस्टूड कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है. So it is a thermometer is also example of a sensor. Now the second component is actuator. An actuator is a device that converts energy into motion or mechanical energy. Simply, it is the component in any machine that enables movement. Actuator एक ऐसा डिवाइस है जिसके वजह से किसी भी डिवाइस में या किसी भी मशीन में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. वो एनर्जी को मोशन में कन्वर्ट कर देता है. मोशन मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्क्रू जैक को एक कार को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं. तो क्या होता है जब हम लोग रोटेटरी मोशन देते हैं तो वो एक लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो रोटेटरी मोशन है वो हमारी एनर्जी हो गई और जो लीनियर मोशन में हो रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी होगी कि वो एक मोशन कर रहा है. और सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं पावर डोर लॉक्स. तो पावर डोर लॉक्स में यहाँ पे जो गन जैसा दिख रहा है वो है एक्चुएटर. तो ये भी मोशन में कन्वर्ट कर देता है. जब भी हम उसको सिग्नल देते हैं वो ऑटोमेटिक डोर लॉक कर देता है, मतलब वो मोशन या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. Now the third component of MEMS is microstructure. Microstructures are material structures seen at the micro level. Specifically, they are structures of an object, organism, or material as revealed by a microscope at magnification greater than 55 times. Simply, anything that is not regular from a given crystalline structure. Microstructure basically स्ट्रक्चर का सरफेस होता है जिसको हम लोग जो माइक्रो लेवल पे होता है उसको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसको रिवील कर सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप से. और उसकी मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 25 टाइम्स होनी चाहिए. तो यू कैन सी वन एग्जांपल इन द फिगर माइक्रोस्ट्रक्चर. नाउ द फोर्थ कंपोनेंट इज माइक्रो-इलेक्ट्रॉनिक्स. Microelectronics relates to the study and manufacture or micro-fabrication of very small electronic designs and microelectronics में बहुत ही small electronic designs और components आते हैं. इनकी manufacturing fabrication करते हैं, इसमें study करते हैं. तो you can see in the figure that very small electronic designs and components are seen. इसमें हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर ये भी बहुत ही माइक्रो लेवल पे डिजाइन होते हैं. नाउ फैब्रिकेशन टेक्निक्स ऑफ MEMS और NEMS. तो द फैब्रिकेशन टेक्निक्स इंक्लूड टॉप डाउन मेथड. टॉप डाउन मतलब लार्ज से स्मॉल. इसमें माइक्रो और नैनो मशीनिंग मेथड्स आ जाते हैं. सेकेंडली मेथड्स बेस्ड ऑन लिथोग्राफी पे बेस्ड सारे मेथड्स इसमें आ जाते हैं टॉप डाउन मेथड में. थर्ड वन इज नॉन लिथोग्राफिक मिनिएचराइजेशन फॉर MEMS and NEMS fabrication. Now the bottom of methods. Bottom of methods also referred to as nanochemistry. Bottom of methods में क्या होता है छोटे से बड़ा, जैसे कि नेचर प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स को यूज करके एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम का कंस्ट्रक्ट करती है. उसी तरीके से जो हम लोग एलिमेंटल कंस्टिट्यूएंट्स लेते हैं कोई भी डिवाइस का और छोटे से बड़ा बनाते जाते हैं, फैब्रिकेट करते छोटे से बड़ा एलिमेंटल कंस्टिट्यूएंट से. तो यहाँ से डेफिनेशन मिल जाता है द डिवाइसेस एंड सिस्टम्स आर असेंबल्ड फ्रॉम देयर एलिमेंटल कंस्टिट्यूएंट्स फॉर MEMS फैब्रिकेशन मच लाइक द वे नेचर यूजेस प्रोटीन्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू कंस्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स. नाउ द फैब्रिकेशन टेक्निक्स फॉर MEMS डिवाइसेस इंक्लूड लिथोग्राफिक टेक्निक्स आते हैं और सेकेंडली आता है नॉन लिथोग्राफिक टेक्निक्स. The lithographic techniques fall into three basic categories: bulk micromachining, surface micromachining, and LIGA. LIGA is a German acronym for lithographic galvanoforming, F for MUNG. Now, in bulk micromachining, it is used to fabricate microstructures such as accelerometers, pressure sensor, flow sensor. इन सबको fabricate करने के लिए bulk micromachining use करते हैं. सरफेस माइक्रो मशीनिंग से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं सेंसर, एक्चुएटर्स एंड कॉम्प्लेक्स माइक्रो डिवाइसेस सच एज माइक्रोमीटर एरेज, गियर्स, क्लिपर्स. एंड लीगा टेक्निक को यूज करके हम लोग हाई एस्पेक्ट रेशियो MEMS जिसको हार्मेन्स भी बोला जाता है ऐसे डिवाइसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं. और जो लीगा प्रोसेस है उससे एक बहुत ही स्टर्डी 3D स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. इससे हम लोग एक अच्छा 3D स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि इससे लीगा में जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है.
और लीगा से a variety of non-silicon materials such as metals, ceramics and polymers can be processed. लीगा से in other than silicon बाकी मटेरियल्स को भी यूज करके हम लोग डिवाइसेस बना सकते हैं, लेकिन बल्क माइक्रो मशीनिंग इस माइक्रो मशीनिंग में मोस्टली सिलिकॉन भी एज अ मटेरियल यूज करते हैं to fabricate devices. Now in the first two approaches, bulk and surface micro machining. तो पहले हमने दो bulk and surface micro machining टेक्निक्स देखे थे, उसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि यहाँ गिवन फिगर में दिया हुआ है. तो फर्स्ट स्टेप इज mechanical और physical and the second step is patterning. पैटर्निंग में प्रोसेस आता है लिथोग्राफी, और लिथोग्राफी के अंदर जितने भी लिथोग्राफी है वो आ जाते हैं. एंड द थर्ड स्टेप इज एचिंग. एचिंग के भी दो टाइप्स होते हैं, ड्राई एचिंग एंड वेट एचिंग. लीगा, अब लीगा जो है वो जर्मन टर्म है, लिथोग्राफी, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग एंड प्लास्टिक मोल्डिंग. लीगा प्रोसेस जो है वो बेस्ड है कंबाइंड यूज ऑफ एक्सरे लिथोग्राफी, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग एंड मोल्डिंग प्रोसेसेस. Now we'll discuss MEMS devices. So first we are going to discuss optical MEMS. Optical MEMS वो होता है जब it is a combination of three fields, mechanical, optics और electronics. जब ये तीन fields को combine करते हैं तब हमें मिलता है Micro-electro-mechanical system, जिसको हम लोग MEMS भी बोलते हैं. तो यहाँ जब ये optical MEMS जो होते हैं वो हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे कुछ few selected MEMS optical devices देखेंगे. A few selected MEMS optical devices are presented to illustrate their impact on the fields of visual display, precision optical platform and data switching for optical communication. पहला यहाँ पे देखेंगे विजुअल डिस्प्ले के फील्ड में ऑप्टिकल MEMS का इम्पैक्ट क्या है. तो जो an early MEMS device successfully used for various display application is the Texas Instruments Digital Micro Mirror Devices DMD. तो जो सबसे पहले MEMS devices जो डिस्प्ले एप्लीकेशन के लिए यूज किया गया था वो था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइस, जिसको बोलते हैं DMD. और DMD की वजह से हाई परफॉर्मेंस मिला रिजोल्यूशन में, ब्राइटनेस में, कॉन्ट्रास्ट रेशियो में और कन्वर्जेंस एंड कन्वेंशनल कैथोड रे ट्यूब एंड इज क्रिटिकल फॉर डिजिटल हाई डेफिनेशन टेलीविजन एप्लीकेशन. जो HD हम लोग देखते हैं उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल है DMD डिजिटल मिरर. डिजिटल मिरर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज एरे ऑफ स्मॉल मिरर्स. बहुत छोटे छोटे मिरर्स का एरे होता है और इसका जो टिपिकल एरिया होता है वो 16 माइक्रोमीटर से लेके इंटू 16 माइक्रोमीटर. इस एरिया में इतना मतलब मिलियंस ऑफ छोटे छोटे मिरर्स आ जाते हैं. तो हर एक जो मिरर है वो कैपेबल होता है ±10 डिग्री में रोटेट होने के और कॉरेस्पॉन्डिंग टू इधर ऑन और ऑफ सिचुएशन. ऑन और ऑफ सिचुएशन होता है, दो सिचुएशन होता है, इधर ऑफ और ऑन. तो जब ऑन मिरर से जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है थ्रू प्रोजेक्टेड लेंस और लार्ज स्क्रीन में इमेज क्रिएट करता है. और जो बाकी जो रिमेनिंग ऑफ मिरर्स हैं वो लोग रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, लाइट जो है ऑफ मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और एब्जॉर्बर को मिल जाती है. तो जितने समय में ऑन स्टेट में रहता है मिरर तो हमें शेड्स ऑफ ग्रे दिखता है, ग्रे दिखेगा. और जहाँ पे पूरा ऑफ स्टेट में रहेगा मिरर्स तो हमें ब्लैक दिखेगा, ब्लैक स्क्रीन दिखेगा. और जब 100% ऑन टाइम में रहेगा, ऑन स्टेट पे रहेगा तो हमें वाइट स्क्रीन दिखता है. और कलर्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं कलर व्हील डाल के, या फिर 3DMD चिप सेटअप पे हम लोग कलर ऐड कर सकते हैं. और 3DMD चिप आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर. रेड, ग्रीन और ब्लू कलर बेसिकली इन तीनों कलर को प्रोजेक्ट करने के लिए 3DMD चिप को यूज करते हैं. Now in the field of precision optical platform, precision alignment and the ability to actuate optical components such as mirrors, gratings, lenses with sufficient accuracy are critical for high performance optical applications. जैसे कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है, IC होता है, उसमें जो क्या बोलते हैं जैसे अलाइनमेंट बहुत नेसेसरी होता है कि हम लोग कहीं भी उसको प्लेस नहीं कर सकते कंपोनेंट्स. अलाइनमेंट इज वेरी नेसेसरी. सिमिलरली उसी तरह ऑप्टिकल सिस्टम्स में भी एक प्रिसाइज एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होता है. तो अगर 1 पिकोमीटर का भी अगर मिस अलाइनमेंट हो जाता है
तो सिस्टम का परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाता है। तो इसी मिसअलाइनमेंट की जो सिस्टम जो परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है, इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग माइक्रो मशीन्ड मूवेबल ऑप्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं लेजर्स के साथ, लेंसेज के साथ और फाइबर्स के साथ। इन तीनों के साथ कंबाइन करके चिप में हमने कंबाइन कर दिया, तो हमें एक सेल्फ अलाइनिंग ऑप्टिकल सिस्टम मिल जाता है। मतलब वो अपने आप ही अलाइन कर लेगा, जो कंपोनेंट्स है वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं चिप में, हम लोग को उसको प्लेस करने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो फिगर्स दिए गए हैं, फर्स्ट फिगर एंड सेकंड फिगर। यहाँ इट इज एन एग्जांपल ऑफ such device. So the first figure is SEM micrograph of a surface micro machine electrostatically actuated micro reflector, and the second one is SEM micrograph of a surface. Now the third one is optical data switching. ऑप्टिकल डाटा स्विचिंग में क्या होता है, अभी ये प्रेजेंटली जो ऑप्टिकल सिग्नल स्विचिंग है वो परफॉर्म होता है ओई से, मतलब ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल। मतलब लाइट जो है पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर इलेक्ट्रिकल से लाइट सिग्नल में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंटली यही यूज हो रहा है। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है बिल्ड करने में और बहुत ही पावर कंज्यूम करता है। तो हम लोग ऑप्टिकल सिग्नल को डायरेक्ट रूट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग बिना कोई इंटरमीडिएट कन्वर्जन, जैसे ऑप्टिकल का पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होना, फिर इलेक्ट्रिकल का ऑप्टिकल में कन्वर्ट होना, इसको हम लोग रिड्यूस करके हम लोग डायरेक्ट मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं ऑप्टिकल सिग्नल्स को। तो हाई स्पीड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर हाईली डिजायरेबल फॉर ट्रांसफरिंग एंड प्रोसेसिंग रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो इंफॉर्मेशन। तो इससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है बहुत हाई स्पीड हो जाती है और हम लोग को रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो इंफॉर्मेशन मिल पाता है, प्रोसेस कर पाते हैं रियल टाइम वॉइस एंड वीडियो इंफॉर्मेशन। और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है टेक्नोलॉजी हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द क्रिटिकल बैकबोन टू सपोर्ट सच सिस्टम्स। A high performance optical data switching network which routes various optical signals from sources to destination is one of the key building blocks for system implementation. Now RF MEMS. RF MEMS radio frequency MEMS. रेडियो फ्रीक्वेंसी मेम्स में क्या होता है, रेडियो ट्रांसीवर्स जो होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड पे रिलाई करते हैं। तो बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी मेम्स हम वायरलेस कम्युनिकेशंस के लिए यूज करते हैं। तो द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सच एज सेलुलर एंड कॉर्डलेस टेलीफोनी, वायरलेस डाटा नेटवर्क्स, two-way paging, global positioning systems, etc. It's a growing interest in building miniaturized wireless transceivers with multi-standard capabilities. तो जैसे ब्लूटूथ होता है और वाईफाई होता है, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी मेम्स यूज करते हैं। तो these are the some radio frequency MEM devices: MEMS variable capacitors, micro machined inductors, MEMS switches, MEMS piezometers। तो जो वेरिएबल कैपेसिटर्स जो होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं लो नॉइज के लिए, एंटीना ट्यूनिंग के लिए, ट्यूनेबल मैचिंग नेटवर्क एक्सेट्रा। अगर लो नॉइज रहेगा और एंटीना ट्यूनिंग भी अच्छा रहेगा तो जो कम्युनिकेशन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये जो डिवाइसेस होते हैं वो कैपेबल होते हैं। जो कैपेसिटर में जो दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं, सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स, उनके बीच का जो एयर गैप होता है उसको वेरी करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए दे आर कैपेबल। तो वही एयर गैप को वो लोग चेंज करके ट्यूनिंग करते हैं, जिससे हमें एक परफेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन हो पाता है। So in the given figure you can see capacitors, inductor and CMOS circuit, and here MEMS switch. Now the applications of MEMS. MEMS जो होते हैं वो ऑटोमोटिव्स में यूज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कार्स में हमारे ऑटोमोटिव जितने भी हैं तो वैरायटी ऑफ सेंसर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे फ्यूल इंडिकेटर होता है, वो भी सेंस करके बताता है कि फ्यूल
है, टेम्परेचर सेंसर होता है, ऑयल सेंसर होता है, वाटर कूलेंट टेम्परेचर होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, एक्सेलेरोमीटर होता है। तो उनमें से एक जो मेम्स है एक्सेलेरोमीटर, उसका एग्जांपल है यहाँ पे integrated capacitive type silicon accelerometer have been used in airbag deployment in automobiles। तो ऑटोमोबाइल्स में यूज होता है ये, और एयरबैग डिप्लॉयमेंट के लिए एक्सेलेरोमीटर यूज होता है। इससे क्या होता है, एक्सेलेरोमीटर एज अ क्रैश सेंसर यूज होता है। क्रैश सेंसर मतलब कोई भी क्रैश होने वाला रहता है उसको सेंस करके वो जो होता है एयरबैग को डिप्लॉयमेंट कर देता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ सेंसर्स इन ऑटोमोटिव्स। नाउ एप्लीकेशन ऑफ मेम्स इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बहुत यूज होता है, जैसे कि कमर्शियल डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLP इक्विपमेंट्स में यूजिंग डिजिटल मिरर माइक्रो मिरर डिवाइसेस। तो जितने भी DLP इक्विपमेंट्स होते हैं वो डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइसेस का यूज करते हैं। डिजिटल माइक्रो मिरर डिवाइसेस हमने अभी स्टडी किया विजुअल डिस्प्ले में कि वो लोग कैपेबल होते हैं रोटेट होने में। तो ये सारे यूज होते हैं फॉर डिजिटल प्रोजेक्शन डिस्प्ले के लिए, जो कि पोर्टेबल या फिर होम थिएटर प्रोजेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज टेबल टॉप या फिर प्रोजेक्शन टीवी में हम लोग DLP इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हैं। और द सेकंड कम्युनिकेशन है पिको सैटेलाइट्स फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। ये जो फिगर दिख रहा है वो पिको सैटेलाइट्स का, जो स्पेस एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। और ये जो माइक्रोफोन्स हैं, तो माइक्रोफोन्स जो होते हैं वो हमारे लैपटॉप, सेलफोन्स, स्मार्टफोन्स, ईयरफोन, हेडफोन्स, इन सब में माइक्रोफोन्स लगे होते हैं। और फोन्स में जैसे कि हम लोग को वेदर रिपोर्ट मिल जाता है, फोन में स्क्रीन रोटेट होता है तो स्क्रीन रोटेशन को भी सेंस कर लेता है। कैमरा भी एक सेंसर है कि सेंस कर लेता है। तो सारों मतलब माइक्रोफोन जो होता है वो सेलफोन से लेकर लैपटॉप हर जगह उसमें फैब्रिकेटेड रहते हैं इनसाइड। नाउ इन बायोमेम्स, जब मेम्स का एप्लीकेशन बायोलॉजिकल फील्ड में होता है तो फिर उसे बायोमेम्स बोलते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोमेम्स इंक्लूड बायोफ्लूइडिक चिप्स फॉर केमिकल एंड बायोकेमिकल एनालिसिस, बायोसेंसर इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, एग्जांपल DNA, RNA, प्रोटीन, सेल्स, ब्लड प्रेशर एंड assays and toxin identification and implantable pharmaceutical drug delivery। तो बायोमेम्स जो होते हैं उसमें बायोफ्लूइडिक चिप्स आते हैं, और बायोसेंसर्स जो होते हैं उसको लैब ऑन अ चिप भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग मेडिकल डायग्नोस्टिक के लिए यूज करते हैं, जैसे कि DNA, RNA, प्रोटीन, सेल और ब्लड प्रेशर, ये सबको डायग्नोस्टिक्स करने के लिए, और जो भी टॉक्सिक है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बायोमेम्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्वेलेबल कैप्सूल है, कैप्सूल के फॉर्मेट में हम लोग बना सकते हैं बायोमेम्स को, और उसे किसी पर्सन के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, और वहां से हम लोग को एक वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग जो बॉडी के अंदर जो भी डिजीज इन्फेक्टेड एरिया उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग अपने पास पा सकते हैं बाहर वायरलेस कम्युनिकेशन से। तो अदर बायोमेम्स एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में यूज आता है, एंडोस्कोपिक सर्जरी में यूज आता है, लेजर एंजियोप्लास्टी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, और इम्प्लांटेबल आर्टिफिशियल ऑर्गन्स कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। तो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जो होते हैं जिसको हम लोग बॉडी के अंदर डाल सकते हैं वो भी इससे बायोमेम से बन सकते हैं। जैसे कि रेटिना, जो आँख का जो रेटिना है वो भी आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाया जा सकता है रेटिना का, और उसको एक ह्यूमन की बॉडी में इम्प्लांट किया जा सकता है। नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्लीकेशन है मेम्स का, जैसे कि इंकजेट प्रिंटर हेड्स। तो इंकजेट प्रिंटर होता है जो उसका जो नोजल होता है वो भी मेम से बना हुआ होता है, अर्थक्वेक सेंसर्स। तो दीज आर द एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ अदर एप्लीकेशंस ऑफ मेम्स डिवाइसेस लाइक केमिकल सेंसर्स, गैस सेंसर्स, infrared detectors, focal plane arrays for earth observation, space science, missile defense application। तो इन सब जगहों भी एप्लीकेशंस होते हैं मेम्स के, मेम्स डिवाइसेस। और भी एप्लीकेशंस हैं। Now the current challenges and future trends. These challenges can be grouped into 3 general categories। 3 टाइप के challenges हमको फेस करने पड़ते हैं during the fabrication, and the third one is packaging, and the second one is packaging, and third one is application।
फैब्रिकेशन में क्या होता है, मेम्स जो होता है वो करेंटली बेस्ड है प्लेनर प्रोसेसिंग टेक्निक्स में, जो कि सिलिकॉन आईसी फैब्रिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो उसके वजह से क्या होता है, प्लेनर प्रोसेसिंग की वजह से सिग्निफिकेंट ज्योमेट्रिक रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं डिवाइस डिजाइन में, स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल कंपोनेंट्स रिक्वायरिंग हाई एस्पेक्ट रेशियो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज। कुछ कुछ होते हैं डिवाइसेस, उसके डिजाइन ऐसे होते हैं कि उनकी ज्योमेट्रिक जो डिजाइन है वो पॉसिबल नहीं हो पाता प्लेनर प्रोसेसिंग से। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा है मटेरियल कंपैटिबिलिटी। जो प्लेनर प्रोसेसिंग है वो सिलिकॉन को यूज करता है, सिलिकॉन मटेरियल यूज करता है, तो यहाँ पे मटेरियल की कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि अभी न्यू न्यू एप्लीकेशन है वो ये डिमांड करते हैं कि हमें अदर देन सिलिकॉन मटेरियल्स चाहिए होता है। कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ डिवाइसेस में अदर देन सिलिकॉन मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे प्लेनर प्रोसेसिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और जहाँ पे माइक्रो फैब्रिकेशन जो होते हैं अप्रोच है, कन्वेंशनल माइक्रो फैब्रिकेशन अप्रोच, वहाँ पे फेल हो जाता है। इंटीग्रेशन विद सिलिकॉन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे हम लोग मटेरियल कंपैटिबिलिटी वहाँ की कम हो जाती है। नाउ द थर्ड वन इज, in terms of names, the most significant challenge is likely the integration of nano and micro fabrication techniques into a unified process. और नेम्स के टर्म्स में देखा जाए तो चैलेंज वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हमें नैनो और माइक्रो फैब्रिकेशन टेक्निक्स दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ता है एक यूनिफाइड प्रोसेस में। और हम लोग इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? फिजिकल डिवाइस जो कि बॉटम अप अप्रोच मतलब छोटे से बड़ा जो जिससे फैब्रिकेट होता है नैनो स्केल डिवाइस, वहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि कोई भी एनालॉग जो होते हैं, नो एनालॉग इज फाउंड इन माइक्रो फैब्रिकेशन। So these are the challenges in fabrication of MEMS and NEMS. Now the second one is packaging. The standardization of packaging becomes extremely difficult. तो हम लोग जैसे कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, आईसी उसको वो स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल होते हैं क्योंकि उसकी पैकेजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कर दी जाती है। तो उसके लिए तो सही है कि आईसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज में अवेलेबल हो जाती है, पर मेम्स को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, उसकी पैकेजिंग को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेम्स डिवाइसेस होते हैं उनको इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। और हर जो एप्लीकेशंस है, हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग यूनिक इन्वायरमेंट होता है, तो इतने सारी चीज़ों के लिए तो स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पैकेजिंग बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। और लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्या हो जाता है, जो पैकेजिंग से रिलेटेड जो कॉस्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जो थर्ड है कि पैकेजिंग की वजह से क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है मेम्स डिवाइसेस का, मतलब परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसको इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो सेंस नहीं करेगा, एक्चुएट नहीं करेगा, और फिर कुछ भी हमें उसके आउटकम्स नहीं देखने को मिलेंगे। और थर्ड वन इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में इसका ड्रॉबैक है कि फॉर कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशंस जो होते हैं, द ट्रेड ऑफ बिटवीन टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड कॉस्ट विल चैलेंज दोज who desire to commercialize the technology. Now these are the references. Thank you.